Hi, everyone. I hope I'm audible and visible. Yeah. So, yes. So, today we have our podcast on a very, very special topic, very, very important topic, dental health, right? And today, to cover that, we have a very, very special guest on our podcast, Dr. Shruti, who is a highly experienced dentist with 14 years of experience in her field, right? And so a little background, about her is she studied at the prestigious Maulana Azad Institute of Dental Science, which is one of the top dental college, right? And completed her residency from AIMS Delhi. So with so many years of experience in the field of dentistry, she has transformed countless smiles and improved oral health for many. Hannah, so who better to talk to us about dental health than her, right? So let's, with a round, round of applause, let us welcome Dr. Shruti, and I'm going to add Dr. Shruti for all of you. Okay. Hi, Tina. Hi. Hi, Thank you Dr. so much Shruti. for inviting me to your podcast. Yeah, yeah, thank you. Thank you so much for joining us today with your busy schedule. I know, it's tough, but you came to create that awareness about dental health. So thank you so much for that. No, this is also a very important part as a practicing dentist because awareness about dental health will only improve the health of people. Correct, absolutely. So, Dr. Shruti, since we have people from different parts of India logging in today, and so हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, so that Sure. सबको they can get to know about how to take care of the dental health. So let's start with our session. So let's with the first basic question से ही start करते हैं. So as a doctor, what are the most common signs of dental problems that everyone should watch for? Like अगर आप as a doctor बोल सकते हो कि how do we know that that we have dental problem? How do we know that we have dental issues? Yes, so the most common sign that everybody knows is toothache. Apart from that, you can have bleeding gums, you can have bad breath, your teeth may be mobile, your teeth may be getting discolored. So these are the common signs and symptoms. But at the same time, it is very important to understand that Hmm. dental problem is asymptomatic in the beginning. मतलब शुरुआत में उसमें कोई symptoms नहीं होते हैं, कोई problem नहीं होगी. इसीलिए कहा जाता है कि हर 6 महीने में जाके अपने डेंटिस्ट के पास चेकअप कराएं ताकि प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही पकड़ा जा सके. ओके, ओके, ग्रेट. सो तो आपने बताया कि अगर डिस्कलरेशन भी होता है, बैड ब्रेथ होता है या पेन होता है या कभी कभी विदाउट सिम्टम्स भी होते हैं डेंटल इश्यूज. ओके. सो नाउ जो हम एज अ कॉमन मैन जो हमें पता है टूथ कैविटी के बारे में, राइट? सो टेल अस समथिंग अबाउट इज व्हाट इज अ टूथ कैविटी, एंड इफ इट इज नॉट ट्रीटेड, बिकॉज पहले बार जब होता है तो इग्नोर ही करते हैं सब लोग. सो इफ इट इज नॉट ट्रीटेड व्हाट कैन हैपन? टूथ कैविटी बेसिकली एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है कि बैक्टीरिया आपके दांत को खाना स्टार्ट कर देते हैं. ओके. तो शुरू में तो दांत के ऊपर व्हाइट स्पॉट आएगा जो आपको दिखेगा नहीं, फिर वो धीरे धीरे ब्राउनिश होगा, ब्लैकिश होगा और फिर दांत में गड्ढा होना स्टार्ट हो जाता है. तो जैसे जैसे वो बैक्टीरिया आपके दांत को खाता जाता है वो और डीप उसके अंदर जाता जाता है. और दांत के अंदर में नर्व्स होते हैं, ओके. ऐसे दांत के अंदर में नर्व्स होते हैं, तो वो नर्व्स के अंदर जब वो पहुंच जाता है तब आपको पेन होने लग जाता है. जब तक वो नर्व्स में पहुंचता है तब उसका रूट कनाल करने की नौबत आ जाती है मोस्टली. तो अगर आप डेंटल डीके को ध्यान नहीं देंगे तो आपको अपना दांत पे रूट कनाल करवाने की जरूरत पड़ सकती है, कैप करवाने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर एट द एंड दांत हो सकता है आपको निकलवाना भी पड़ जाए, एक्सट्रैक्शन भी पॉसिबल है. Okay, so we should not, like ignore any small cavity as well. डेफिनेटली. अगर कैविटी स्मॉल होती हैं तो एक छोटी सी फिलिंग से काम चल जाता है. जैसे जैसे कैविटी बड़ी होती जाती है यू Yeah. लूज मोर अमाउंट ऑफ टूथ स्ट्रक्चर एंड देन द लाइफ ऑफ द टूथ आल्सो डिक्रीजेस. Yes, yes. That's how, you start getting pain in the nerves, I guess, right? I mean, it is, I think most of us have experienced that root canal in this generation. So all of us are aware of the pain. So definitely we should not, especially बच्चों को, I guess, right? We should not ignore. बच्चों में भी बड़ों में भी Hmm. यूजुअली ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों के ट्रीटमेंट्स नहीं करवाते हैं कि दूध के दांत है गिर ही जाएंगे तो ट्रीटमेंट करवाने की क्या जरूरत है. बट Yeah. दूध के दांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. वो Mhm. परमानेंट दांतों के लिए स्पेस बना के रखते हैं ताकि परमानेंट दांत अपनी जगह पर आ सके. अदरवाइज दांत आगे पीछे आते हैं या कभी कभार परमानेंट दांत निकलते भी नहीं है, फिर Yeah. आपको ब्रेसेस करवाने पड़ते हैं.
दूसरा कि अगर दांतों में जो दूध के दांत भी हैं, दे ऑल्सो लास्ट फॉर अराउंड 10 to 12 years ऑफ एज। Yeah. सो अगर उसके बीच में बच्चे को पेन होता है, वो खाना नहीं खा पाता है, सामने के दांतों में, सारे के सारे दांतों में बच्चों के कीड़े लग जाते हैं, तो बच्चे स्माइल करने से घबराने लग जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बचपन से ही बहुत लो हो जाता है। या पर अगर डॉक्टर किसी को कोई सिम्टम ही नहीं है, सोचो यू दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स, सो हाउ ऑफन शुड वन विजिट द डेंटिस्ट फॉर अ रेगुलर चेकअप, और शुड Minimum, या yes, minimum in every 6 months you should visit. whether we have a problem, we don't have a problem. Yes, whether you have a problem or not, visit your dentist every 6 months, because I said dental problems are asymptomatic in the beginning. You will not get to know that you Hmm. have any dental problem only when you go for a regular checkup, you get your x-rays done, then only you get to know. Correct. So it is applicable both for kids as well as adults. Yes. या एंड बच्चों के लिए लाइक कितने छोटे बच्चों से हमें डेंटल लाइक डेंटिस्ट विजिट स्टार्ट करना चाहिए? सो जैसे ही बच्चे का पहला दांत आए, 6-7 महीने की उम्र में पहला दांत आता है, तब हाँ, आपको बच्चे का फर्स्ट चेकअप करना चाहिए, या फिर फर्स्ट बर्थडे पर बच्चे के अगर एक भी दांत नहीं आया, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका 1 साल तक में भी दांत नहीं आया, करेक्ट। पर अगर एक भी दांत नहीं आया है तो 1 साल की एज में, नहीं तो जैसे ही पहला दांत आए बच्चे का, तभी से चेकअप पे लेके जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम बोलते हैं इस तरह से करने के लिए? या क्योंकि अगर बच्चा जब शुरू से ही आ रहा है डेंटिस्ट के पास, तो बस वो एक चेकअप करवाता है और घर चला जाता है। ही इज़ हैप्पी, ही थिंक्स डेंटिस्ट इज़ अ हैप्पी प्लेस। अदरवाइज़ जब बच्चों को पेरेंट्स लेकर आते हैं, जब उनको दर्द है दाँत में, उस टाइम पे उनका रूट कैनाल की ज़रूरत होती है दाँत में, या दाँत निकालने की ज़रूरत होती है, वो पेन में आते हैं, डरे हुए आते हैं, और तब उनको डेंटिस्ट का मन में और डर बैठ जाता है और आगे भी वो अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवाने से घबराते हैं। करेक्ट। शुरू से ही वो खराब साइकिल बन जाती है। पर अगर बच्चा शुरू से आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो शुरू से उसके मन में कोई घबराहट नहीं रहती है डेंटिस्ट के पास आने में, एंड डेंटिस्ट पेशेंट रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हिच इज़ गुड फॉर द लॉन्ग टर्म ओरल हेल्थ फॉर ऑफ द किड। या वन मोर क्वेश्चन केम टू माय माइंड, सो जब बच्चा का हम सोचते हैं वी नॉर्मली गो टू अ पीडियाट्रिक डॉक्टर, है ना, नॉर्मल जनरल पीडियाट्रिक डॉक्टर, बट आपने जैसे बताया कि वी शुड विजिट, सो यू मीन अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, राइट? डेंटिस्ट वी शुड विजिट। Yes, yes. So there are pediatric dentists also, specialist dentists who specialize for dental treatment of kids. अगर आपके घर के आसपास में there's a pediatric dentist, so visit a pediatric dentist. If there's not a pediatric dentist, then visit a general dentist. Okay, okay, okay. So, yeah, because I now in current generation, what we see is every child, वो कैप लगा रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ द चाइल्ड, या तो कैप लगा रहता है या उनके दांतों में डिस्कलरेशन, थोड़ा कैविटी, वो तो दिखता ही है, दैट हैज बिकम वेरी कॉमन। सो आई थिंक वी शुड बी रियली रियली अवेयर ऑफ द डेंटल हाइजीन फॉर अ किड, And also there are many preventive treatments that are available for kids. Preventive and interceptive. Interceptive means कि जैसे छोटे बच्चे हैं, 2 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा, उनके मुंह में भी बहुत कैविटीज होती हैं। अब इतने छोटे बच्चे बैठ के ट्रीटमेंट्स नहीं करवाते हैं, तो उनके लिए वी हैव इंटरसेप्टिव प्रोटोकॉल्स ऑल्सो, कि कुछ टाइम के लिए हमने टीके को अरेस्ट कर दिया, तो वो सब चीजें भी पॉसिबल है। पेरेंट्स डरते हैं कितना छोटा बच्चा है तो ट्रीटमेंट करवाएगा ही नहीं, पर वो करवाएगा या नहीं करवाएगा वो डेंटिस्ट की सिरदर्दी है कि वो कैसे करेगा। बट एटलीस्ट अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे के दांत में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जरूर डेंटिस्ट के पास लेके जाएं, अदरवाइज वो प्रॉब्लम बढ़ेगी ही। बच्चों के मुंह में डेंटल प्रॉब्लम्स, क्या कैविटीज, एकदम जंगल में आग के जैसे फैलते हैं। बड़े में इतना ज्यादा डीके इतना फास्ट नहीं फैलता, बच्चों में बहुत फास्ट फैलता है। Yeah, when you talk about that fire in jungle, we can imagine कि अगर ऐसा cavity फैल गया तो it is really, very very risky for a child's health, है ना? Yes, and So also dentistry has evolved a lot. yeah, We have conscious sedation laughing gas in the clinics, जो कि बहुत सेफ होता है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले अपने बच्चे का, खुद के बेटे का भी ट्रीटमेंट किया था, उसके अंदर में कि आप लाफिंग गैस लगाइए, अच्छा, और उसके बाद बच्चे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। इवन फॉर एडल्ट्स ऑल्सो, सिर्फ बड़े लोग भी डरते हैं ट्रीटमेंट करवाने से, ऑल्दो वो बैठ जाते हैं, बच्चे तो बैठते भी नहीं है, पर बैठ के भी वो डर रहे होते हैं, तो ताकि डर ना लगे, तो वो कॉन्शियस सेडेशन का भी ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है। yeah. So doctor, yeah, what role like does diet play? Like अभी हमने बात किया, पर डाइट का क्या रोल होता है मेंटेनिंग अ गुड डेंटल हेल्थ? डेफिनेटली। सो अब जैसा आजकल हमें पता चल रहा है, एवरीथिंग इन द बॉडी, वेदर इट बी योर जनरल हेल्थ और इज whether it is your oral health, is related to your diet, your gut microbiome, everything. So good diet is very important. If you eat
हेल्दी न्यूट्रिशियस रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, सो वो अच्छे आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, प्लस दे एक्ट एज लाइक क्रंची थिंग्स होते हैं, तो वो से जॉ का डेवलपमेंट प्रॉपर होता है, या क्लीन प्रॉपरली हो जाते हैं टीथ, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, तो आपके दांत ठीक से बनते हैं। और on the contrary, if you're eating too much of processed food, too या much of sweet food and all these things which are available in a bakery like breads and cakes and stuff like that, तो या वो स्वीट होता है, वो सारा प्रोसेस्ड होता है, बहुत हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है, सो दैट कॉजेज डीके। ऑल्सो आप फ्रिक्वेंटली खा रहे हैं, अगर आप सपोज अगर आपको स्वीट खाना भी आप अपने खाने के साथ खा लीजिए तो उसका उतना बुरा इफेक्ट नहीं होगा, बट आपने अभी थोड़ा सा खाया, फिर 1 घंटे बाद थोड़ा सा खाया, फिर 1 घंटे बाद थोड़ा सा खाया, उससे बार बार ही मुंह का पीएच डाउन होता है और ज्यादा कैविटी लगने के चांसेस होते हैं। Okay, so eating often causes more cavity. मतलब one of the reason. यस Okay, यस यस। that we never knew, you know. बहुत ही आदत है ना ये बच्चों को भी, हम एक एक घंटे में, दो दो घंटे में कुछ ना कुछ देते रहते हैं, अभी ये खा लो, अभी खा लो. Yeah, and kids are more into all processed food and all. So it is, that's why maybe this is affecting their nowadays, you know, big यस। time. So like poor dental health क्या overall health को भी affect करता है? Is there any connection dental health and overall health? अगर आपका घर है, घर की Mhm. विंडोज टूट गई हैं, तो उसके Mhm. अंदर से आपके थीव्स घुसेंगे, Yeah. एनिमल्स घुसेंगे, तो ऐसे ही अगर आपके गम्स वीक हैं, तो Mhm. वो दे प्रोवाइड अ विंडो फॉर द बैक्टीरिया टू एंटर योर ब्लड स्ट्रीम, और Mhm. ब्लड स्ट्रीम से बैक्टीरिया हार्ट में जाता है। इट इज लिंक्ड कि अगर गम प्रॉब्लम है तो हार्ट में भी प्रॉब्लम होगी, गम प्रॉब्लम है तो एल्जाइमर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, Oh. गम प्रॉब्लम है तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको प्री टर्म बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चे का वेट रिड्यूस हो जाता है। तो अगर लाइक यू शुड पे अटेंशन टू योर गम्स, योर गम हेल्थ। ओके, सो बिकॉज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन गम हेल्थ पर ही आ रही थी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज गम हेल्थ, यू नो, एंड हाउ डू वी नो, जैसे कि गम हेल्थ के बारे में बस दांतों से ही पता चलता है, या हाउ डू वी नो दैट आवर गम हेल्थ आर फाइन? सो गम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एक एक बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी तो चाहे आप उसके ऊपर ताजमहल खड़ा कर लो, वो ताजमहल गिर जाएगा। यस। गम्स आर लाइक द फाउंडेशन फॉर योर टीथ, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गम हेल्थ। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके गम्स हेल्दी नहीं है? अगर ब्रशिंग करने के टाइम पे ब्लड आता है आपके दांतों में से, या फिर बैड ब्रेथ रहता है, या फिर आपके दांत लूज हो रहे हैं, तो दीज आर साइंस फॉर बैड गम हेल्थ। एंड अगेन कैविटी में तो फिर भी प्रॉब्लम्स होते हैं, गम तो इज गम्स आर कंप्लीटली साइलेंट, गम प्रॉब्लम्स आर कंप्लीटली साइलेंट। सो इट ओनली व्हेन अ डेंटिस्ट एग्जामिन्स यू दे विल बी एबल टू सी कि हाँ गम में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एंड यू शुड टेक दो सीरियसली, ओके because ओके, it is not just related to your teeth, it is related to your overall health also. एब्सोल्युटली, ठीक है। ओके, सो नाउ स्मोकिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन, द इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग, यू नो, हाउ डज इट अफेक्ट योर, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द टीथ? डेफिनेटली स्मोकिंग से ड्राई माउथ होता है, ड्राई माउथ की वजह से कैविटीज होती हैं, स्मोकिंग से गम डिजीजेस होते हैं। जो लोग स्मोक करते हैं उनमें अगर हम कोई भी प्रोसीजर्स करते हैं, उन प्रोसीजर्स की लाइफ रिड्यूस हो जाती है। ऑल्सो यस, ऑल्सो स्मोकिंग कॉजेज ओरल कैंसर, ओह, so या। smoking is very very bad for the health of gums and teeth, and then there's a cosmetic issue of discoloration as well. और एक कॉमन चीज है कि स्मोकिंग के बाद में हर कोई, यू नो, च्युइंगम या कुछ ले लेते हैं, दैट इज आई थिंक एड ऑन, और भी गम्स या सॉरी टूथ को अफेक्ट करता है, इजंट इट? अगर च्युइंगम शुगरी है तो इट विल अफेक्ट बैडली, बट अगर सपोज आप xylitol कंटेनिंग च्युइंगम्स खाते हैं जिनमें ज्यादा शुगर नहीं है, तो देन अच्छा, इट विल नॉट अफेक्ट। ओके ओके। और एक जो कॉमन प्रॉब्लम है डॉक्टर इसमें, यू नो, टूथ का, वो है टूथ सेंसिटिविटी, यू नो, तो टूथ सेंसिटिविटी कैसे होता है? जैसे थोड़ा ठंडा खाओ, गर्म खाओ, मैनेज नहीं हो पाता है, यू नो, या फिर ब्रश करते समय या कुछ भी खट्टा खा लो, एनीथिंग, इट सेंसिटिविटी जो होता है उसके बारे सो में कुछ जैसे बताइए। हमारे दांतों के ऊपर में 3 लेयर्स होते हैं, ये ओके। एनामल होता है, यहाँ पे डेंटिन होता है, रूट्स के ऊपर सीमेंटम होता है, तो एनामल इज द हार्डेस्ट लेयर। जब ये हार्ड लेयर हट जाती है तब सेंसिटिविटी होती है। किन किन रीजन से हार्ड लेयर हट सकती है? अगर दांत में कैविटी हो गई, या अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक फूड या एसिडिक चीजें लेते हैं, सपोज कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीते हैं, या ओके। कुछ कुछ लोग होते हैं कि उनको लगता है कि हमारे दांत गीले हैं, तो वो ना किसी चीज से घिसने लग जाते हैं अपने दांतों को, वो एनामल हटा देते हैं। करेक्ट। तो अगर कोई भी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका एनामल हट रहा है, या फिर सपोज कई बार गम प्रॉब्लम में मसूड़े ऊपर चले जाते हैं,
तो रूट्स एक्सपोज हो जाते हैं, रूट्स के ऊपर देयर इज नो एनामल, खाली हम्म, ऊपर होता है एनामल, तो जब रूट्स पे एनामल नहीं होता, रूट्स एक्सपोज हो जाता है, तो वहाँ भी सेंसिटिविटी होती है। सो दीज correct. आर कॉमन कॉजेज ऑफ सेंसिटिविटी। यूजुअली लोग क्या करते हैं, अगर टीथ सेंसिटिव होते हैं तो मार्केट से जाके जो भी डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट के उनको एड्स पता होते हैं, उनके नाम पता होते हैं, वो यूज कर लेते हैं। हम्म, पर अगर आपको सेंसिटिविटी है तो ज़रूर एक बारी अपने डेंटिस्ट से चेक करवाइए कि उसका अंडरलाइंग कॉज़ क्या है। अगर अंडरलाइंग कॉज़ कुछ भी नहीं है तो डेंटिस्ट भी आपको डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट ही प्रिस्क्राइब करेंगे। बट अगर कैविटी है या गम प्रॉब्लम है, कुछ भी और है, तो वो डेंटिस्ट आपको डायग्नोज करके बता सकते हैं। so sensitivity of teeth should not be ignored, right? इट शुड मतलब नॉट, लॉन्ग इट टर्म के लिए इट इज़ बिकॉज़ ऑफ सम अंडरलाइंग प्रॉब्लम, अपने आप से नहीं होती है सेंसिटिविटी, हेल्दी टीथ में सेंसिटिविटी नहीं होती है। नहीं होना चाहिए। ओके, ओके। सो और एक जो हम डेंटल क्लीनिंग कराते हैं, इज इट अ मस्ट? मैं अपनी क्लीनिंग हर 3 महीने में करवाती हूँ। जैसे कुछ भी बिल्डअप होने लग जाता है, मैं क्लीनिंग करवाती हूँ, क्योंकि जो बिल्डअप होता है उसके अंदर में बैक्टीरिया होते हैं। अगेन दोज़ बैक्टीरिया रिलीज़ टॉक्सिन एंड दे कॉज़ गम डिजीज़ेज़। So these buildups are very harmful for the gum health, for the health of your teeth. तो अगर आपको ऐसा लग जब भी आपको लगता है कि दांत के ऊपर डिपॉजिट्स हो रहे हैं, उनको आप हटवा लीजिए, उनको मत रखिए। यूजुअली लोगों को लगता है कि क्लीनिंग करवाने से दांत हिल जाते हैं या दांतों में गैप्स आ जाते हैं। दिस इज मिथ। यूजुअली दांतों के बीच में ना ऐसे कुछ ना कुछ वो बिल्डअप्स जब जम जाते हैं, लाइक द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ डेंटल क्लीनिंग डन वाज व्हेन आई जॉइन्ड डेंटल स्कूल। I did ओके। not know I had gaps in my teeth. So if you see, there's a slight gap in my teeth. या, पता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे वो बिल्डअप था। और या, फिर जब क्लीन हुआ तो वो हट गया, बिकॉज़ आई एम अ डेंटिस्ट, आई अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, बट लोगों को लगता है कि डॉक्टर ने क्लीन करते हुए हमारे दाँत को पतला कर दिया। या। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनसे दाँत पतले हो ही नहीं सकते। वो दाँत के मटेरियल को हटा ही नहीं सकते, वो सिर्फ़ बिल्डअप को हटाते हैं। तो इसलिए आप उस चीज़ के लिए बेफ़िक्र हो जाएँ कि उसकी वजह से होगा वो, क्योंकि बिल्डअप होता है वहाँ पे तो गैप्स दिख नहीं रहे होते हैं, और जब क्लीन करवाते हैं तो गैप्स दिखने लग जाते हैं, बस ये फ़र्क होता है। Okay, so you suggest every 3 months we should go for a. I don't suggest every 3 months, I do my cleaning every 3 months, but at least 6 months में या 1 ईयर में एक बार ही क्लीन करवा लेना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी बिल्डअप नहीं होता है, आप बहुत अच्छे से अपने टीथ क्लीन कर लेते हैं, तो अगर 2 इयर्स तक भी नहीं हो रहा, तब 2 इयर्स तक रह सकते हैं। जब भी डिपॉज़िट हो, आप When तभी we करवा see, लीजिए। when we see there is a built up, तो ये बच्चों के लिए भी applicable है? लाइक कितने साल के बच्चों को क्लीन अप करा सकते हैं? अगर बच्चों में डिपॉज़िट्स हो रहे हैं, तो बच्चों में भी कराने चाहिए। सो इट इज द सेम प्रोसेस लाइक फॉर एडल्ट भी, जब हम क्लीन अप कराते हैं वी फील सो सेंसिटिविटी एंड मतलब अजीब सा फील होता है ना, लाइक कि एक ड्रिलिंग मशीन चल रहा है अपने दांत के ऊपर, तो बच्चों का भी। वो एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि अगर करने की टेक्नीक ठीक है, तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं फ़ील होता है। और ओके, अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी बहुत गम रिसेशन है, गम्स नीचे जा चुके हैं, उनको ज़्यादा सेंसिटिव फ़ील होगा। जनरली अगर आप हेल्दी हैं, तो आपको इतनी सेंसिटिविटी नहीं फ़ील होगी टीथ में। ओके। और बच्चों को भी हम लाइक एनी ईयर, हाँ, लाइक आफ्टर यस। 2 3 एनी ईयर्स वी कैन गो फॉर? 3 इयर्स के बच्चों को ना यूजुअली बिल्डअप्स होते नहीं हैं। होते नहीं, ओके। हाँ, तो थोड़ा-सा बड़ी एज में जब एक बारी परमानेंट टीथ आ जाते हैं, उनके ऊपर यूजुअली मैंने देखा है बिल्डअप्स होते हुए। छोटी एज में ज़्यादा मैंने बिल्डअप्स नहीं देखे हैं। ओके, तो व्हाइट व्हाइट कुछ कुछ पैचेस तो रहते हैं बच्चों में, जैसे मैं अपने बेटे का भी वो देखती हूँ तो हाँ, इट इज। वो डीके है, दैट इज़ स्टार्टिंग ऑफ डीके, व्हाइट पैचेस। ओके, ओके, या व्हाइट पैचेस, तो तब क्या करना है, ब्रश करा लेना है या क्लीनिंग? आपको एक बारी डेंटिस्ट के पास लेके जाइए, अगर कुछ उनको प्रिवेंटिव या एंटीसेप्टिव कुछ प्रोटोकॉल्स लाइक फ्लोराइड थेरेपी वगैरह वो कर सकते हैं। वो ओके, करके उसको रोक सकते हैं तो अच्छी बात होती है। बच्चों में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसको बोलते हैं लिफ्ट द लिप। बच्चों के होंठ को ऐसे उठा के देखना चाहिए कि ओके, यहाँ पे कोई व्हाइट पैचेस, येलोइश पैचेस, ऑरेंजिश पैचेस तो नहीं दिख रहे हैं। लोगों को लगता है कि वो दूध जमा हुआ है, वो दूध नहीं जमा हुआ होता है। वो ओह! स्टार्टिंग ऑफ डीके होता है। अच्छा, दूध भी जमा हुआ लगता है लोगों को? लोगों को लगता है कि दूध जम गया है। ओके, ओके, एनीवे, येस, बट यू नो, या, सो बहुत टाइम ये भी कन्फ्यूज़न होता है एज़ अ पेरेंट या एज़ अ हम लोग अपने अपने लिए भी जाते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ ओरल केयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट ना, कुछ भी ऐड देख लिया, कुछ भी हम उठा के लेके आते हैं, जैसे कि टूथब्रश, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, तो इन सब चीज़ों में आपका कोई वो है कि कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे कि ऐसा देख कर ही हमें खरीदना चाहिए? आप टूथब्रश लो टूथब्रश क्या? अगर आपको लेना है तो आपको हुँ, सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश लेना चाहिए रेगुलरली। अगर आपको सेंसिटिविटी रहती है तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट या सुपर सॉफ्ट जो ब्रशेज़ आते हैं आपको वो लेने चाहिए। मैं पर्सनली इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ करती हूँ, मेरी फैमिली भी सब इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बेटर क्लीनिंग होती है। हुँ, ऑल्दो अगर आपकी क्लीनिंग टेक्नीक ठीक है, हुँ, तो हुँ, हुँ, फिर आप नॉर्मल ब्रश से भी उतना ही अच्छा क्लीन कर सकते हैं।
तो ये हो गई टूथब्रश की बात। टूथपेस्ट में आपको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट लेना चाहिए, बट एटलीस्ट मिनिमम 1000 ppm फ्लोराइड होना चाहिए, वो पेस्ट के ऊपर लिखा रहता है। आजकल ओके। कुछ कुछ पेस्ट आते हैं जिनमें फ्लोराइड नहीं होता है। हाँ। अगर आपको नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करने हैं तो उसमें नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होना चाहिए, कैल्शियम फॉस्फेट होना चाहिए, इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो कि ओके। कैविटी को प्रिवेंट कर सके। बहुत सारे टूथपेस्ट आजकल मार्केट में ऐसे भी आते हैं जिनमें कि कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, सो दोज आर नॉट रिकमेंडेड। ओके। तो जितने भी मार्केट में नॉर्मल जो भी पेस्ट आते हैं, कोलगेट, कोलगेट टोटल, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, उनमें ये होता है, कुछ-कुछ पेस्ट बहुत ज़्यादा एब्रेसिव होते हैं। जैसे कि कुछ-कुछ हर्बल टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा एब्रेसिव होते हैं, पेप्सोडेंट भी बहुत ज़्यादा एब्रेसिव होता है। एब्रेसिव इन द सेंस व्हाट इज दैट लाइक? एब्रेसिव का मतलब होता है कि दाँत घिसता कितना है वो, अच्छा। ओके। इतना ज़्यादा घिस रहा है दाँत को, तो हम्म। बहुत ज़्यादा हाई एब्रेसिव टूथपेस्ट नहीं लेने चाहिए। यूज करना चाहिए। ओके। दैट जो इज वेरी। वाइटनिंग टूथपेस्ट होते हैं, जो चारकोल कंटेनिंग टूथपेस्ट होते हैं, दीज़ आर वेरी एब्रेसिव। तो वो ओके। एक बारी के लिए तो वो एब्रेड करके आपको लगेगा कि दाँत हमारे चमक गए हैं, बट या। रेगुलरली यूज़ करेंगे, तो दाँत घिसने शुरू हो जाएँगे और जब घिसेंगे तो वो और येलो लगने लग जाएँगे। ओके। 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 एंड हाउ व्हाट अबाउट माउथ वॉश, शुड वी यू यूज? माउथ वॉश अगर आपके डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं आपको सर्टेन कंडीशंस के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ माउथ वॉश का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और टूथपेस्ट यूज़ करना, ब्रशिंग करने का मेथड ठीक हो, करने का तरीका ठीक हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So if somebody is using mouthwash continuously, regularly, is it harmful? Not suggested, हाँ, like. एक माउथ वॉश में जैसे जो रेगुलर माउथ वॉशेज़ होते हैं ओवर द काउंटर, उनमें एक जो एक्टिव इंग्रीडिएंट होता है वो होता है क्लोरहेक्सिडीन। Okay. क्लोरहेक्सिडीन इज़ एंटीबैक्टीरियल एंड इट Mhm. डिसकलर्स द टीथ। तो Mhm. सपोज़ किसी को गम डिज़ीज़ है, उनको हम थोड़े से दिनों के लिए क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि अगर वो एंटीबैक्टीरियल है, तो वो जो Hmm. आपका नॉर्मल फ्लोरा भी है ना माउथ का, नॉर्मल बैक्टीरिया जो अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया हैं, वो उनको भी किल कर देगा। Oh. तो वो रेगुलरली नहीं यूज़ करने चाहिए। प्लस माउथ वॉशेज़ में समटाइम्स हैव अल्कोहल बेस आल्सो, तो वो Yes. Yes. ड्राई आउट करता है। Mhm. लॉन्ग टर्म यूसेज डिसकलर कर सकता है। तो हम किसी-किसी कंडीशंस में माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कैविटी होती है, उनको हम फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ वॉशेज़ प्रिस्क्राइब करते हैं। माउथ वॉशेज़ का बहुत ज़्यादा रेगुलर यूसेज में एडवांटेज नहीं है। नहीं है। Okay. And you talked about this electric toothbrush, right? So I was also about to. So electric toothbrush कैसे फायदा करता है, लाइक एज कम्पेयर टू नॉर्मल टूथब्रश, जो आपके बातों से पता चला कि मूवमेंट या डिफरेंट डिफरेंट गैप को कवर करता है, राइट? एम आई राइट और देयर इलेक्ट्रिक इज? टूथब्रश में एक तो हेड छोटा होता है, हेड छोटा होता है तो वो पीछे तक जा सकता है, पीछे वाले दाँतों तक जा सकता है। दूसरा, नॉर्मल ब्रश में ना आप खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे से आप मूवमेंट्स कीजिए, अच्छे से करें। लोग यूजुअली ऐसे-ऐसे घिसते हैं, ऐसे-ऐसे घिसने में ना दाँत और ज़्यादा घिस जाते हैं या उनमें नॉचेस पड़ जाते हैं, ऊपर से कट जाते हैं दाँत। इलेक्ट्रिक टूथब्रशेज़ में वो अपने आप से रोटेट करते हैं ब्रिसल्स या फिर अपने आप से वाइब्रेट करते हैं ब्रिसल्स, तो उससे क्लीनिंग बेटर होती है। And like we can use it for a long time, right? Like that electric brush. So is it fine? Like उसमें कुछ उस bristles में कुछ बैक्टीरिया वगैरह इतने लो? उसकी हेड चेंज हो जाता है। अच्छा। हम बोलते हैं कि नॉर्मल टूथब्रश को एवरी 3 मंथ्स आप चेंज कीजिए, करेक्ट। ऐसे ही इलेक्ट्रिक टूथब्रश का भी हेड चेंज हो जाता है, वो आप एवरी 3 मंथ्स चेंज कर सकते हैं। Okay, so you recommend electric toothbrush are better because this confusion also many of गुड us. इलेक्ट्रिक, यस, गुड इलेक्ट्रिक टूथब्रशेज़ आजकल बहुत सारी गिमिकी कंपनीज़ भी आ गई हैं, Mhm. जिनके ब्रशेज़ आर यूज़लेस, वो कुछ करते नहीं हैं। तो Yeah, लाइक ओरल-बी के ब्रशेज़ अच्छे हैं। will be okay. यस, एक एक डेंटिस्ट का ही बनाया हुआ ब्रांड है सेवन ओरल केयर, उनके Mhm. ब्रशेज़ भी अच्छे हैं। Okay, yeah, that is very important information because we as a normal हम लोग तो हमें पता नहीं चलेगा, right? कौन सा सही टूथब्रश है इलेक्ट्रिक वाला, because it is quite expensive. But yes, if it adds extra benefit, तो definitely we can use it, right? Okay. तो चिल्ड्रन डेंटल क्लिनिक के बारे में तो हमने बताया, बट हमने इसके बारे में बात नहीं की डेली हैबिट्स जो है एक ऑप्टिमम डेंटल हेल्थ हाइजीन को मेंटेन करके, वो डेली हैबिट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 2 मिनट सुबह ब्रश करना है, 2 मिनट शाम को ब्रश करना है। 2 मिनट बहुत लंबा होता है। क्या? जब हम लोग ब्रश करते हैं यूजुअली हम लोग 40 सेकंड्स, 45 सेकंड्स, 1 मिनट मैक्सिमम उतना ब्रश कर रहे होते हैं। ट्रू। 2 मिनट ब्रश करना है, ऊपर से ब्रश करना है, अंदर वाली सरफेस पे ब्रश करना है, च्यूइंग सरफेसेस पे ब्रश करना है।
और फ्लॉस करना है। फ्लॉस एक धागा होता है जो कि दांतों के बीच में क्लीन करता है। अच्छा। यूजुअली हम लोग फ्लॉस नहीं करते हैं, जो हम कैविटीज़ देखते हैं वो दांतों के बीच में लगी हुई होती है, माने कि जो ब्रश जो आपके ब्रश होता है वो यहाँ क्लीन करता है, अंदर क्लीन करता है, बाहर, पर जो दांत के बीच का सरफेस होता है यहाँ नहीं क्लीन करता। या फ्लॉस से क्लीन किया जाता है और या हम देखते हैं कि यूजुअली ना कैविटीज़ इन्हीं सरफेस पे आके लग जाती हैं अदरवाइज़, करेक्ट। क्योंकि अगर हम इनको क्लीन नहीं करते हैं तो ब्रश करना है, फ्लॉस करना है। अगर किसी के मुँह में बहुत ज़्यादा कैविटीज़ होती हैं तो हम उनको थोड़ा-सा अलग टाइप का रूटीन बताते हैं। किसी के माउथ में अगर गम डिजीज़ेज़ हैं उनको हम थोड़ा-सा अलग टाइप का रूटीन बताते हैं, बट मिनिमम इतना है कि 2 मिनट सुबह ब्रश करना है, 2 मिनट शाम को ब्रश करना है और दिन में कम से कम 1 बारी आपको फ्लॉस करना है। एक बार फ्लॉश, तो फ्लॉश, यस, एंड टंग क्लीन करना है, टंग क्लीनर से। yeah, so floss means using that thread kind of thing you told. यस, यस। There is also one machine, right, which is used for It flossing is and all called this. water flosser. Yeah. Water flosser is an adjunct to flossing. अच्छा। अ, जिन लोग से फ्लॉस नहीं की जाती है वो वाटर फ्लॉसर से कर सकते हैं। कुछ खाना दांतों के बीच में फंसा हुआ था तो वो निकाल देता है, बट फ्लॉसिंग, रेगुलर थ्रेड फ्लॉसिंग इज बेटर देन वाटर फ्लॉसर। That we have to do ourselves, thread say. यस, यस। Okay, okay. Because as a regular, like we have not seen people talking, या हमें भी अगर हम बात करें तो we never go for flossing like those thread वाला जो आपसे पता चला. I know about that water वाला flossing जो एक machine आता है शायद. वाटर Right? फ्लॉसर ना प्रेशर से पानी मारता है। Yeah. बट यूजुअली क्या होता है, दांतों के ऊपर ना एक स्टिकी लेयर होती है जिसको कि प्लाक बोलते हैं, स्टिकी लेयर। Yeah. समझिए कि कहीं पर अगर जैसे पानी पड़ा रहता है तो काई जम जाती है ना, काई के ऊपर अगर आप ऐसे प्रेशर से पानी मारते रहोगे तो वो हटेगी नहीं। अगर आप वो तीले वाली झाड़ू लेके, सीख की झाड़ू से उसको अच्छे से स्क्रब करके हटाओगे तब वो काई हट जाती है। तो दांतों के ऊपर भी वही प्लाक होता है। अगर आप अपने 2-3 दिन ब्रश मत करिए और फिर ना सिर्फ दांतों को के ऊपर ऐसे से हटा के देखिए तो व्हाइट सा ना स्टिकी सा लेयर निकलेगा। तो वो मैकेनिकल स्क्रबिंग से ही हटता है, वो माउथ वॉश करने से नहीं हटता है। वो आप ब्रश करेंगे या फ्लॉस करेंगे वो तभी हटेगा। और उसी स्टिकी लेयर के अंदर में बैक्टीरिया होते हैं। वही बैक्टीरिया गम डिजीज कॉज करते हैं, वही बैक्टीरिया डीके कॉज, टूथ कैविटीज कॉज करते हैं। Oh my God. Yeah, brilliantly explained, वो काई एग्जांपल देकर, वाओ, I came to know many things, ये सब के बारे में, क्योंकि many times we tend to ignore. Even बच्चों का मैं सोचूं, बच्चों के बहुत टाइम में तो ऐसे छोड़ देते, बच्चे तो 30 seconds भी ब्रश नहीं करते because they are in हरी बड़ी। I think we should tell them. यस, 8 इयर्स की एज तक आपको बच्चों की ब्रशिंग खुद सुपरवाइज करनी चाहिए। बच्चे अपने आप से अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते। एक आध दिन उन्होंने खुद से ब्रश कर लिया, बीच में एक आध दिन आप भी ढंग से ब्रश कर दीजिए कि कुछ एरियाज जो मिस हो रहे हैं वो आप ढंग से कवर कर लीजिए। अदरवाइज डेफिनेटली बच्चों के दांतों में कैविटीज होंगे। Yes, I should be, doing that. Yeah, sure. तो now जो दूसरा क्वेश्चन जो हमें मिला था वो है कि कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं। तो आई थिंक आपने कवर किया कि कम ब्रश करना, कम टाइम में ब्रश कर लेना, फ्लॉश ना करना, क्लीनिंग के नाम में ना जाना, है ना, डेंटल क्लीनिंग। सो बेसिकली और कुछ मिस्टेक्स है जो आप कवर करना चाहते हैं डेंटल हाइजीन में? डेंटल हाइजीन में लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं कि खुद से घर में व्हाइटनिंग करने की कोशिश करते हैं। सॉल्ट रब कर लेते हैं या बेकिंग पाउडर रब कर रहे होते हैं। ऐसे मेरे पास पेशेंट्स आए जिन्होंने अपने दांत पूरे घिस लिए हैं Oh my ये God. चीजें कर करके। खुद से कभी व्हाइटनिंग ट्राई नहीं करनी है। ये जो ओवर द काउंटर व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, जो आजकल पर्पल सीरम्स आ रहे हैं, व्हाइटनिंग पेन्स आ रहे हैं, व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स आ रहे हैं, दे डू नथिंग टू व्हाइटन योर टीथ। दे कैन ओनली कॉज हार्म। कुछ या आपको वो आपका पैसे वेस्ट होंगे या कुछ चीज़ों से आपके दांत और खराब हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए। अगर व्हाइटनिंग करवानी है तो डेंटिस्ट के पास जाके व्हाइटनिंग करवाएंगे तो ही वो सेफली आपके टीथ व्हाइटन हो पाएंगे। क्योंकि व्हाइटनिंग के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं दे हैव अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। वो कॉन्सेंट्रेशन ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स में सेल कर ही नहीं सकते बिकॉज पीपल विल हार्म देमसेल्व्स उनको यूज करने से। और जो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो वर्क ही नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। टंग क्लीन करना जरूरी है। अगर यूजुअली लोग क्या करते हैं, डेंटिस्ट के पास आते हैं, जिस दांत में दर्द हो रहा है सिर्फ उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। बाकी डेंटिस्ट बताएगा कि 5 दांत में और में कैविटी लगी है पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। तो बट वो जो 5 दांतों में कैविटी है उसकी वजह से आपके माउथ में बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो बाकी दांतों में भी कैविटीज लगेंगी। तो वो बैक्टीरिया विल गो इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। वो सब चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। Okay. So one more thing is oil pulling, right?
Yes. how good it is, what are the benefits, or we should not go for it? नो, What is ऑयल पुलिंग डज़ नॉट हैव एनी हार्म्स। hmm, आयुर्वेदा में ऑयल पुलिंग के काफ़ी बेनिफिट्स बताए जाते हैं कि वो टॉक्सिन्स पुल आउट कर लेते हैं बॉडी से और ये सब चीज़ें। बट क्योंकि हम लोग डेंटिस्ट्री में एलोपैथी तरीके से वी आर टॉट, तो hmm, हमें ऑयल पुलिंग के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज़ इट इज़ नॉट हार्मफुल। yeah, इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट। उसको करने का प्रॉपर तरीका होता है कि आप hmm, कोई भी वेजिटेबल ऑयल या कोकोनट ऑयल को लेके माउथ में उसको 20 मिनट्स तक रिंस कर yeah, स्विच करना होता है विद प्रेशर, yeah. एंड देन यू स्पिट दैट आउट इन द टॉयलेट, नॉट इन योर वॉश बेसिन एटसेट्रा, अदरवाइज वो ब्लॉक हो जाएंगे इतने सारे ऑयल से। Hmm. तो वो आप कर सकते हैं डेफिनेटली, उसका कोई नुकसान नहीं है। और बेनिफिट्स होंगे ज़रूर, आयुर्वेदा में मेंशन्ड है, ज़रूर बेनिफिट्स होंगे, बट हमें एज सच डेंटिस्ट्री में पढ़ाया नहीं जाता है ये चीज़। Okay, great, no worries. So, doctor, I think you have shared so many things, so many tips, है ना, जो भी बेसिक, जो भी आपने अभी तक हमने डिस्कस किया, क्योंकि आज हम बेसिक ही डिस्कस करना चाहते थे। और बहुत कुछ आपने बहुत इजी लैंग्वेज में जितना एग्जाम्पल देके हो सके आपने बहुत अच्छे से समझाया। नाउ एज अ लेम, एज अ कॉमन मैन, जो हम लोग का प्रॉब्लम होता है, हम डेंटिस्ट नाम से ही डरते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा भी दांत होता है, दांत में दर्द होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो हम छोटा मोटा कुछ नुस्खा करके वी ट्राई टू अवॉइड कि हमें जाना ना पड़े, क्योंकि हम डरते हैं कि यहाँ पेन होगा। यू नो, वी थिंक ऑफ रूट कैनल, वी थिंक ऑफ कीपिंग द माउथ ओपन, लॉट ऑफ थिंग, देयर इज अ फियर टू गो। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस, यू नो, इफ वी टॉक। तो आप जैसे आपने बताया कि नाउ डेंटिस्ट्री यू नो बहुत इंप्रूव हो चुका है, बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं, इससे डरने का कुछ भी नहीं है। तो आप कुछ कुछ बताइए, क्योंकि यू नो फॉर मी ऑल्सो वी कीप, आई ऑल्सो कीप प्रोकास्टिनेटिंग, यू नो, यार जो हम बात करते नहीं, यार आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, ऐसा करते करते वी कीप प्रोकास्टिनेटिंग आवर डेंटल इश्यूज। तो आप कुछ बताइए टेक्निक्स जो आजकल काफी इजी हो गया है, या वी शुड नॉट गेट वरीड अबाउट इट। यस, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बोला, अगर आप एवरी 6 मंथ्स अपना चेकअप करवाते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर होती भी है तो इनिशियल स्टेज पे पकड़ी जाएगी। वो प्रिवेंशन भी हम कर सकते हैं कि रेगुलर आपकी क्लीनिंग्स वगैरह से हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम कभी हो ही ना। सबसे पहली चीज़ तो ये। या सेकेंडली, अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई है तो वी हैव एडवांस्ड एनेस्थीसिया टेक्निक्स नाउ व्हिच इज़ ऑलमोस्ट पेनलेस, कि ओके। आपको एनेस्थीसिया के टाइम पे पेन होता नहीं है। एक बारी टूथ नम हो गया फिर तो कुछ भी नहीं पता चलता है। चाहे आप कैनाल करो, चाहे आप उसमें फिलिंग करो, चाहे उस दाँत को निकालो, कुछ भी करो, वो नहीं पता चलता है। थर्ड, कॉन्शियस सेडेशन आ गया। कॉन्शियस सेडेशन इज़ लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कुछ लोगों को बहुत एंग्ज़ायटी होती है बिकॉज़ ऑफ प्रीवियस बैड एक्सपीरियंसेस, कि वो ना चाहते हुए भी अपने आप को मना भी रहे होते हैं, तो भी उनको लग रहा होता है कि पिछली बार इतना दर्द हुआ था, तो शायद अब दोबारा से दर्द होगा, कुछ भी। तो वो गैस एक आपके नोज़ के ऊपर हम लगा देते हैं, तो यू फील वेरी रिलैक्स्ड, वेरी काम, एंड उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे ही वो गैस हटाते हैं, विदिन 2 मिनट्स आपका वो इफ़ेक्ट सारा चला जाता है। यू कैन ओके। ड्राइव बैक होम ऑल्सो। सो एंड there are so many advances now in modern dentistry. Dentistry has become very fast, very predictable, so there is nothing to be afraid of. Only thing that you have to be afraid of is your own neglect, कि लोग जो डर के नहीं जाते हैं उससे वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और फिर हमारे हाथ भी बंध जाते हैं कि हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली। तो जैसे कि किसी ने बहुत अच्छे से केयर किया, राइट, द टूथ्स आर वेरी गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट यू नो एज भी होते, वी एज, राइट। सो डज एजिंग एंड ओरल हेल्थ, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, या डेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है एज एज वी एज? यस, एजिंग के साथ में एक तो आपके माउथ में जो सलाइवा बनना कम हो जाता है, उससे के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज के साथ में धीरे-धीरे थोड़ा-सा गम रिसेशन होने लग जाता है। गम रिसेशन की वजह से ये सब गम प्रॉब्लम्स वगैरह होने लग जाते हैं, या फिर इतना ज़्यादा यूज़ के बाद में टीथ ग्राइंडिंग वगैरह की वजह से दाँत घिस जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं ओल्ड एज में। Then what should we do? Like, is there any special considerations we should keep in mind, or that is a basic जो thing? रेगुलर, हाँ, जो रेगुलर हम सबके लिए बोलते हैं वही चीज़ें हैं कि आप अपना ब्रश कीजिए, फ्लॉस कीजिए, पानी ठीक से पीजिए, हेल्दी फूड खाइए, और डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में आप चेकअप करवाइए। अदरवाइज़ अलग से कुछ ऐसा नहीं है। और जैसे ज़रूरी नहीं होता कि हम सोचते हैं कि जब एज बड़ी होगी तो दाँत घिसेंगे ही या दाँत निकल के गिरेंगे ही, वो नेग्लेक्ट की वजह से होता है। अगर आपने अपने दाँतों की अच्छे से टेक केयर करी है तो 70 साल में भी, 80 साल में भी यू कैन हैव अ फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ टीथ विद हेल्दी गम्स एंड एवरीथिंग। Yes, yes, I have seen, you know, many of my like fathers, you know, 70 80 years के मेरे जो नानी दादी लोग हैं, उनके दांत अभी भी बहुत अच्छे हैं, like, you know,
and हमारे like in this age only 30-40 में ही we get lot of issues. I think the But quality one very important thing that I did not talk about is yeah. stress. आजकल हम्म मैं देख रही हूँ कि स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग दाँतों को या तो ग्राइंड करते हैं या क्लेंच करते हैं। उसकी वजह हम्म से उनके दाँत घिस जाते हैं, टूट जाते हैं या फिर उनको हेडेक्स होने लग जाते हैं, हेडेक्स, नेक okay, एक, ये okay. अपर शोल्डर एक, ये सब चीज़ें अगर आपको बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। Hmm. दिस कैन बी बिकॉज़ ऑफ योर बैड बाइट। कि Okay. अगर आप मतलब सुबह उठ के आप फ्रेश नहीं फील कर रहे हो, आपको सिर भारी लग रहा है, आपको यहाँ पे भारीपन लग रहा है, तो शाम होते-होते आपको सब भारीपन लगने लग जाता है। दिस कैन बी बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस, यू आर ग्राइंडिंग और क्लेंचिंग योर टीथ। इन सब के भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इनके लिए स्पेशल स्प्लिंट्स बनते हैं या आपकी बाइट को बैलेंस किया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी ठीक करी जा सकती हैं। यू डोंट हैव टू कीप ऑन पॉपिंग पिल्स फॉर योर हेडेक्स। ओके ओके ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। लाइक स्ट्रेस से भी इतना कुछ होता है ऑन डेंटल हेल्थ, राइट? सो एक क्वेश्चन जो मिस हो गया मेरा किड्स हेल्थ के ऊपर, बच्चों को माउथ अल्सर्स भी होते हैं ना, जो इस गम्स के नीचे होते हैं। इज देयर एनी रिलेशन विद टीथ? इज इट बिकॉज ऑफ टीथ और इट इज बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन? लाइक एक तो पता है विटामिन बी कमी से, बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट इज इट रिलेटेड टू डेंटल हेल्थ? नो इट इज़ नॉट। Not at all. Ulcers are not gums ulcers, not gums, like तो the cheek. माउथ में अल्सर्स होते हैं यूजुअली वो विटामिन डेफिशिएंसीज वगैरह की वजह से होते हैं बच्चों में, अदरवाइज ऐसे दांतों की वजह से नहीं। क्योंकि आपने बताया ना बाइटिंग वाला थिंग, तो वी आल्सो आई आल्सो हर्ड समवेयर कि बाइट करते बच्चे खाते समय बहुत टाइम, ये बाइट कर देते, यहाँ बाइट कर देते, तो वो अल्सर में फॉर्म हाँ, होता अगर बाइट कर लेंगे, गाल गलती से गाल दांतों के बीच में आ जाएगा तो अल्सर हो जाएगा। है। ओके ओके, या दैट इज आल्सो देयर, राइट? ठीक है। So I think we have covered most of our questions, doctor, and I think it's already 40 minutes we have done. And yes, thank you for sharing so many important, valuable information about dental care. So one thing जो मेरा टेक अवे अगर मैं बोलूंगी, मुझे तो ये पता चला, I think my audience will also agree कि डरना नहीं है, we should not get worried and procrastinate the dental checkups. और क्योंकि अगर हम जितना प्रोक्रास्टिनेट मैं आपको एक ये एडवाइस देना चाहूंगी, आप किसी भी डेंटिस्ट के रिव्यूज पढ़िए, किसी भी डेंटिस्ट के, नॉट मेरे। या मैक्स 90% डेंटिस्ट का आप रिव्यूज पढ़ेंगे ना, तो उसमें लोगों ने लिखा होगा कि हमें कोई दर्द नहीं हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो डेंटिस्ट्री जनरली हैज बिकम वेरी वेरी कंफर्टेबल, सो डोंट वरी अबाउट विजिटिंग योर डेंटिस्ट। yes, absolutely, yes. So we should not worry because ultimately we are harming our teeth only, है ना? क्योंकि ये एक बार चला गया, लाइक जो परमानेंट टीथ आ गया, इसको अगर हमने टेक केयर नहीं किया, और अगर दांत बाय, क्योंकि वन मोर ट्रीटमेंट वी डिड नॉट टॉक अबाउट दिस, वी कैन इफ अगर एक टीथ पूरा चला जाता है, लाइक खराब हो जाता है, वी हैव टू रिमूव इट एट वेरी यंग एज, समथिंग क्या है उसको नया टीथ लगा देना, इम्प्लांट या इम्प्लांट, यस। सो दैट इज ऑल्सो आई हर्ड दैट उसके लिए गम्स का सही होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बोन होनी चाहिए वहाँ पे इम्प्लांट लगाने के लिए, बोन सफिशिएंट थिकनेस में, सफिशिएंट लेंथ में होनी चाहिए। नहीं भी होते तो भी कुछ ग्राफ्टिंग वगैरह के प्रोसीजर्स करके हम बना लेते हैं, बट थोड़ा-सा गम बोन वहाँ पे प्रेज़ेंट होनी चाहिए इम्प्लांट करने के एंड लिए। इज इट वेरी पेनफुल प्रोसेस? हाउ द प्रोसेस इज? इट इज़ नॉट पेनफुल, सो दैट आपका वो एरिया को नम कर देते हैं, नम करके इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं। फिर वो प्रोसीजर खत्म, 3 महीने के बाद में उसके ऊपर कैप लग जाती है। ओके इट इज़ दैट, उतना अगर जैसे अगर किसी ने इम्प्लांट कोई करवा रहा है तो ऑब्वियसली उसने दाँत भी निकलवाया होगा अपना। दाँत निकलवाने से ज़्यादा सिंपल होता है इम्प्लांट लगवाना। okay, great. So thank you, Dr. Shruti, for taking out time and sharing your insights today on this important dental health. So at last आप I'm done with my queries. आप अपने तरफ से कुछ बोलना चाहते हो अपने हमारे ऑडियंस को, आपके ऑडियंस को? और एक और चीज़ जिसके बारे में हमने नहीं बात करी थी वो है टेढ़े-मेढ़े दाँत। यस टेढ़े-मेढ़े दाँत इज़ नॉट ओनली एस्थेटिक इश्यू, लोग सोचते हैं कि दाँत टेढ़े-मेढ़े देखने में अच्छे नहीं लगते, कई बार इसके फंक्शनल इश्यूज़ भी होते हैं कि आपकी बाइट प्रॉपर नहीं है, उसी वजह से जॉइंट के प्रॉब्लम्स, हेडेक्स और ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो अगर बच्चे छोटे बच्चे हैं आपके तो 8-9 साल में 7-8 साल में उनका फर्स्ट ऑर्थोडोंटिक इवैल्यूएशन होना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब दूध के दाँत से परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं, उस टाइम पर हम लोग कुछ प्रोसीजर्स करके उनको परमानेंट दाँतों में
ब्रेसेस लगवाने से या फिर परमानेंट टाइप का कुछ उनकी डिफ़ॉर्मिटी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसको हम उसी स्टेज पे बचा सकते हैं। जैसे कि डीप बाइट होती है कि ऊपर और नीचे वाले दाँत बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ओपन बाइट है या बच्चे कुछ-कुछ थंब सकिंग करते हैं या लिप बाइटिंग करते हैं, सब प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से दाँत टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। तो जब 7-8 साल की एज के बच्चे डेंटिस्ट के पास आते हैं, तो ये अच्छा, सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है और वहीं पे ही स्टॉप किया जा सकता है या वहीं पे ही उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। ओके, दैट्स अ ग्रेट इन्फो। तो इसके लिए हमें कुछ आपने कुछ एक वर्ड ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट, ओके, पर हम कोई भी डेंटिस्ट के पास जाकर ये बोल सकते हैं कि हाँ, कि एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत है। बहुत सारे कई बारी लोग बोलते हैं कि खाली हम बड़े एज में ही जब सारे दाँत आ जाएँगे, हम तभी ट्रीटमेंट करेंगे। पर हम्म, कुछ लोग होते हैं जो जैसे मिक्स्ड डेंटिशन में भी स्पेशलाइज़ करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के दाँतों में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि डीप बाइट है या ओपन बाइट है या दाँत बहुत ज़्यादा आगे है या नीचे वाला जबड़ा बहुत ज़्यादा आगे है या हम्म, टेढ़ा बंद होता है, ऐसे। या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप कोई स्पेशलिस्ट ढूँढ सकते हैं उस चीज़ के लिए और उनके पास जा के दिखा सकते हैं कि आगे जाके वो प्रॉब्लम परमानेंट ना हो जाए या आगे जाके पक्के दाँत निकाल के फिर ब्रेसेस करने पड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अर्ली एज में करा लेना इज बेटर। हाँ, दिखा लेना चाहिए, डॉक्टर से ओपिनियन ले लेना चाहिए कि अगर कुछ कर सकते हैं क्या? Okay, awesome, great. So yeah, so I think we are done, Dr. Shruti, and thanks for sharing your views and your knowledge to all of us. So for the audience, I think this podcast has helped you. I will definitely share the link of Dr. Shruti in the description. Okay, or yes, let us know if you have any more queries on dental health. We'll definitely cover it, and take care of your dental health. And thanks for being there. Thank you, Dr. Shruti, for coming here today. मोस्ट वेलकम। Thank you. Thank you so I have my page on Instagram by the name of Veda Dentistry. तो अगर Yes, आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आई विल yes, बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प। yes. I will share the page link, everything in the description below. Okay, doctor. Thank you so much. Bye bye. Bye bye, everyone. Okay, talking to you. Bye. Thank you. Yeah.